Hi everyone, a very warm welcome to our YouTube channel. Let's get started with another educational series of a candlestick pattern. So today we are going to discuss on shooting star. It's the bearish reversal pattern. Without wasting much time, let's get started. Shooting star, as I said, is a bearish reversal pattern and it's a single candlestick pattern. Just like hammer, this one too is a single candlestick pattern and it forms usually after advancement in price. So just remember, in case of a hammer, it usually forms at the downtrend and shooting star always forms at the top. Let's take an example. So let's assume a stock moves from 90 to 95, comes back a bit to 93, again goes up 95, 97, 100, 105, 108, 110 and around 125. So at 125, this is what the price looks like. So for those of you who don't understand what is the open, close, high and low, I'll just quickly explain. If it's a red candle, then the open is above and basically the close is below the open, and that's the reason why the body is in red. And this one is the lower price and this one is the high. So this is where the stock opened. It went up, it went below as well, but the prices closed at this juncture. So let's just understand what it is. It's a bearish reversal pattern, which means when the prices were moving up, it is going to indicate that the prices are soon going to get reversed. It usually forms after the advancement in price or at the end of an uptrend. So we can fairly assume whenever there is a shooting star after a significant advancement, we can call it basically the end of a up move. Let's understand more about this. Now let's look at the basic characteristics of a shooting star candle. It always has a small body. Can you see this body? It's very small. So the open and the close is not very far away. It has got little or no lower shadow or wick. The price usually closes at the bottom 25% of the range. This is the bottom 25% of the range. And it usually has a longer upper wick. Wick is usually 2x of the entire body. I'm talking about the upper wick. So the 2x is the minimum criteria. Now, does that mean the moment we see a shooting star, we will just go short on that particular index or a stock? The answer is simply no, because we never trade any single candlestick pattern without any confirmation. Also, we never trade single candlestick patterns in isolation, which means we need something more to call it an uptrend. So in that case, we need to check the current market structure, whether the current market structure is an uptrend or it is in a downtrend or it is somewhere in the sideways. So let's assume the prices are actually, instead of going up, the prices are coming down. And then you spot this shooting star. Does that mean we are going to take this trade? The answer is simply no, because in the first slide, we have studied that it usually forms at the uptrend. Just like the hammer candlestick pattern, shooting star also is color agnostic. Color agnostic simply means if the shooting star, the open is below, the open is below the close or the open is above the close price, which means the body would be either green or red. Still, we are going to accept both as shooting star. But as per my understanding, as per my observation so far, whatever the powerful shooting star that I have seen, it's usually formed in red. Although the color doesn't matter, and we will understand why the color is of no significance in this particular case. Now let's understand the logical meaning of a shooting star. For that, let's go on the charts. But before that, I'll quickly summarize the entire thing for our Hindi audience as well. तो शूटिंग स्टार एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है जो कि यूजुअली हमको बताती है कि अब जो अपट्रेंड है वो चेंज होने वाला है. इसका मतलब है वो बेरिशनेस का इंडिकेशन करती है, मतलब आने वाले दिनों में थोड़ी सी डाउन ट्रेंड में जा सकती है मार्केट, ये वो इंडिकेट करती है. तो हमेशा शूटिंग स्टार जो है वो फॉर्मेशन होती है आफ्टर एन अप ट्रेंड. मतलब मान लो एक स्टॉक है जो 90 पे चल रही है, 90 से 110, 120, 130, 140 और यहाँ पर जाके अगर 150 के आसपास ये बनती है तब वो शूटिंग स्टार कहलाती है. विच मीन्स ये एक अप ट्रेंड के होने के बाद ये जब भी आती है तब वी कैन क्लियरली सी से कि अब रिवर्सल होने वाला है. तो हम पहले समझते हैं कि इसके लिए
क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है शूटिंग स्टार की। पहले तो जो बॉडी है वो बहुत ही छोटी होती है, जो अपर विक है वो एटलीस्ट 2 टाइम्स ऑफ द एंटायर बॉडी होती है, मतलब मिनिमम क्राइटेरिया है 2x ऑफ द एंटायर बॉडी। और नीचे की जो विक है, लोअर विक जिसको हम कहते हैं या लोअर शैडो जिसको हम कहते हैं, दैट शुड बी मिनिमम वेरी स्मॉल टाइनी, या तो फिर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और यूजुअली हमने देखा है कि जो प्राइजेस है वो हमेशा लोअर 25% ऑफ द एंटायर प्राइस रेंज में क्लोज हो जाती है। तो अब ये समझते हैं कि अगर हमें कभी भी शूटिंग स्टार हम स्पॉट करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम खुद के उसमें ट्रेड लेंगे। द आंसर इज नो, बिकॉज शूटिंग स्टार सिर्फ दिखाई देने से ट्रेड एक्टिवेशन नहीं होता है। ट्रेड एक्टिवेशन दो चीजों से होती है। उसके बाद एक तो हमें ये याद रखना है कि सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में हमेशा हमेशा हमारे लिए कॉन्फर्मेशन कैंडल के लिए वेट करनी पड़ती है। और दूसरी चीज तो ये है, शूटिंग स्टार जानने के लिए पहले तो आपको पता होना चाहिए मार्केट वेदर अप ट्रेंड में था, डाउन ट्रेंड में था या साइडवेज में था। और ये क्यों जरूरी है, बिकॉज हमने ये पहले ही सीखा है कि शूटिंग स्टार जो है वो अप ट्रेंड के अंत में बनता है। अब मान लीजिएगा मार्केट एक डाउन ट्रेंड में चल रही है और वहां पर अगर शूटिंग स्टार आती है तो जस्ट बिकॉज आप कहोगे कि यार निकिता ने बताया था कि शूटिंग स्टार में तो ट्रेड लेना है शॉर्ट का, तो जी नहीं, मैंने ऐसा नहीं बताया था। मैंने कहा था अप ट्रेंड के बाद अगर वो आती है उसके बाद आपको शॉर्ट जाना है। जस्ट लाइक हमने हैमर में जैसा सीखा था कि कलर मायने नहीं रखता है, अगर ग्रीन बॉडी भी बनती है तब भी वो शूटिंग स्टार है और अगर रेड बॉडी बनती है तब भी वो शूटिंग स्टार ही है। तो कलर से हमें कोई लेना देना नहीं है। और हम समझते कि क्यों कलर से हमें कोई लेना देना नहीं है, हम लॉजिकली इस चीज पे अंडरस्टैंड करेंगे। तो अब चलते हैं हम चार्ट्स पर। तो चलिए हम देखते हैं फ्यू एग्जांपल्स, स्टार्टिंग विद बैंक निफ्टी। आप लोग खुद भी जाकर देख सकते हो, यू योरसेल्फ कैन वेरीफाई दिस। This is the weekly chart for Bank Nifty and I am looking at 27th Jan 2015 weekly. Okay, so let's understand. The prices from 11,000 was moving on the upside, relentlessly was moving upside, went sideways, again went up, again sideways, again went up. Then finally, so there is this king star pattern. The next thing, as I said, in a single candlestick pattern, we always need to wait for a confirmation. So after the shooting star candlestick pattern, we need another candle which closes below the shooting star. So in this particular case, the weekly candle on the following week closed exactly below the shooting star candle. So this one is our alert candle and this candle is a confirmation candle. In single candlestick pattern, we are always going to take trades post confirmation. As I said, this is a bearish reversal pattern which indicates the prior trend was an uptrend, and post that the market is going to reverse the prior trend. In that case, we are going to take shorts after the confirmation candle. So our entry would be at the end of the confirmation candle. So in case of a weekly, let's say the Friday at around 3:15, you can take entry at this candle. The SL would be the high of the alert candle, and the typical risk reward would be more than 2x. And you can clearly see how beautiful it has worked. It has went all the way down till 0.5x. Now I understand the most number of people would be having questions like, we don't want to keep such a high SL, what to do then if we don't want to keep that kind of an SL. Remember, this particular educational videos are meant for beginners. Most of you are not at all profitable. So first and foremost, the idea is to become profitable. So here I do understand the SL is very far away, but if you keep at the high of this candle, chances of getting your SL hit is very high, as you can see this particular wick. So plan, I understand the number of points is higher, so which means the quantity will go less. Okay? See, once you get the experience, or the various modifications that you can do is totally fine. That will be up to you. Like you can, after spotting a shooting star in weekly, maybe then you just wait on daily to get an entry rather than waiting for the entire upcoming week to get an entry. You can do all those modifications, but then that is something that you will get only after experience. But gain that experience, first of all, you have to trade and be profitable. So for that purpose, simply just follow this one. Like at the end of the confirmation candle, initiate the short position with the high of the shooting star as your SL, and typically it will give you 1:2. Else what you can do, you can always trail. And as I said in the hammer video as well, every particular index
or stock script has its own nuances. So the more you dwell with it, the more you will understand what is the best risk reward works on that particular chart. In this case, you can clearly see the stock actually hit a low of almost 13,300, 13,400, thereby giving a RR of 2.5. Now let's understand more about it. Like let's cover more examples. Let's go to a stock, this ICICI Bank, and on 15 September 2022, we did spot a shooting star. Again, the same pattern. Prices were moving upwards, and after a good up move, we then finally spot a shooting star. Now, this one is just an alert candle for us. We need to wait for a confirmation. The confirmation comes the very next day, and then we initiate the short position. तो short position कहाँ पर initiate होगा? जैसे ही हमारा confirmation candle आ जाता है, जो कि close होना चाहिए हैमर के नीचे, वो जैसे ही होता है, हम बिल्कुल भी initiate करेंगे हमारा shorts दैट पर्टिकुलर स्टॉक। कि आईसीआईसीआई बैंक में हमने अगले दिन 315 के आसपास हमने शॉर्ट इनिशिएट किया, और हमारा एसएल क्या होगा? एसएल वुड बी द हाई ऑफ द शूटिंग स्टार कैंडल। इसके हाई की मतलब ये पर्टिकुलर कैंडल का जो हाई है, जो कि है 936.65, मान लीजिएगा 937 आपने एसएल लिया है, और एंट्री आपने कहा किया है 909 पे आपने एंट्री ली है। तो उसके बाद आपको अगर आप देखोगे यहाँ पर भी आपको मिनिमम 2x तो इसने आरआर दिया हुआ है। यहाँ पर मैं बोल रही हूँ मिनिमम की बात कर रही हूँ, 2x तो आपको मिनिमम दे दिया है। चलिए और देखते एग्जाम्पल्स। अब आप कहोगे 2022 का कोई रिसेंट वाला दिखाओ, तो 2023 का देखते हैं हम। यहाँ पर क्या हुआ है, ये एक और वेरिएशन है जो आप देख सकते हो। मार्केट्स पहले मूव हुआ ऊपर, यहाँ से कहा से तो नीचे आया, फिर ऊपर जाने के लिए लगा। अब ये क्या है? अगर आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला वीडियो अब तक नहीं देखा होगा, तो प्लीज मेक इट अ पॉइंट टू गो एंड वॉच दैट वीडियो. You will definitely be able to do a lot more improvement in your trading. तो हमने क्या सीखा था कि जब भी रेजिस्टेंस पास फर्स्ट टाइम आता है तो प्राइसेस यूजुअली रेजिस्ट करते हैं, और मान लीजिएगा आपको रेजिस्टेंस के पास ही अगर स्टार मिलता है, इससे बढ़िया क्या हो सकता है आपके लिए? इनिशिएट कर सकते हो आप शॉर्ट्स, बिल्कुल अगले दिन आपको कॉन्फर्मेशन भी आ जाता है, और फिर आप एंटर करते हो शॉर्ट्स में। अब देखते हैं तो एंट्री कहाँ पर होगी? अगले दिन जहां पर हमको कॉन्फर्मेशन मिल रहा है, और हमारा एसएल किधर होगा? का प्रीवियस डे का जो शूटिंग स्टार का जो हाई है वो हमारा एसएल है। ठीक है, इसका एसएल है 996 और एंट्री है 959। मैं दोबारा कह रही हूँ, फॉर दोस ऑफ यू थिंक कि एसएल बहुत ज्यादा है, हमारे लिए नहीं होगा, तो ये जो मॉडिफिकेशंस है आप लेकर आ सकते हो। और नॉट नेसेसरी, सिंस ये शॉर्ट ट्रेडिंग है, मतलब जो हम शूटिंग स्टार है इज अ बेरिश पैटर्न, राइट? तो ये शॉर्ट्स जो ये शॉर्ट करने वाली जो पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी है, ये आप डेली और वीकली में ना यूज करते हुए आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देख सकते हो, 30 मिनट टाइम फ्रेम पे देख सकते हो, और आर्ली टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हो। तो यहाँ पर तो हो गई हमारी एंट्री, और वो रही हमारी एसएल, और यहाँ पर आपको ये मार्केट दोबारा से यहाँ पर 1.64 के आसपास दे रहा है। यहाँ पर इसने डेफिनेटली 2x क्यों नहीं दिया है? बिकॉज ऑलरेडी द कॉन्फर्मेशन कैंडल ने ही काफी सारा मूव ले लिया है, इसके लिए हमको ये 2x का हमको मिल नहीं रहा है। दूसरी चीज क्या है, हमको कहाँ पर बुक आउट करने के लिए देखना चाहिए? एक तो है ये यूजुअली टारगेट की 2x तो देती है, दूसरी आपको हमेशा कोई सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस, जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है उसके आसपास बुक आउट करने के लिए आपको देखना है, स्पेशली जो शॉर्ट्स है। क्योंकि लॉन्ग वाली जो ट्रेड है ना, अगर बुल मार्केट चल रही है जैसे कि अभी वाली चल रही है बुल मार्केट, वहां पर तो आप रुक सकते हो, बट शॉर्ट्स का ऐसा होता है ना, बहुत ही लॉन्ग पीरियड नहीं होता। तो शॉर्ट्स बहुत फास्ट होता है बट लंबी नहीं होती है यूजुअली, एटलीस्ट ऑफ लेट तो बहुत लंबी बेयर मार्केट्स हुई नहीं है। तो अगर आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर एक जो रेजिस्टेंस हुआ करता था ये सपोर्ट लिया था, और यहाँ पर एग्जैक्टली इसने सपोर्ट लिया, तो ये इसके आसपास भी आप कहीं ना कहीं बुक आउट करने के लिए देख सकते हो। तो शूटिंग स्टार में तो हाउ कैन यू डिटरमाइन द टारगेट्स इन केस ऑफ अ शूटिंग स्टार? देयर आर थ्री थिंग्स. First and foremost, you have to remember that usually this kind of a candlestick pattern give at least 2x in terms of risk reward. The other thing is you can look for booking out at near supports and thereafter trail them. And as I said, it would be very difficult for you to trade in weekly and daily because the stop losses would be very high. I would recommend you take trades on the shorts only and only basis 15 or 30 minutes. But remember, when I am referring to 15 and 30 minutes, requires screen presence. So simply, what there is another suggestion of you who have a full-time job or some other business, you can just simplify things for yourself. ऐसी जरूरी नहीं है कि आपको सारे कैंडलस्टिक पैटर्न, आपको सारे चार्ट पैटर्न्स
आपको ट्रेड लेना ही लेना है। एक तो याद रखिएगा, योर मेन थिंग इज समथिंग एल्स राइट नाउ। ठीक है, आपका एक फुल टाइम जॉब है या बिजनेस है या आप पढ़ाई कर रहे हो, यू आर अ स्टूडेंट। सो द आइडिया इज नॉट टू ट्रेड एवरीथिंग। ठीक है, वो जैसे आपकी एक्सपर्टीज आएगी, जब आप फुल टाइम पे आओगे तब आप वो सब करोगे, बट अभी आपको उसके साथ कुछ करना है, तो आप आपकी लाइफ को सिंपल रखिएगा। आप बस 2 या 4 पैटर्न्स आपने आपके लिए फिक्स करना है और आपने उसी को ट्रेड करना है। फॉर एग्जाम्पल, ये जब शॉर्टिंग की जैसे बात आती है, इसमें एसएल अगर आप डेली और वीकली में देखोगे, जैसे इस केस में भी ये एसएल काफी बड़ी है, मतलब मैं खुद नहीं लेती हूँ इतने बड़े वाले एसएल। तो आप क्या कर सकते हो कि ऐसे वाले ट्रेड्स आप अवॉइड कर सकते हो। ऐसे वाले मतलब आप बेरिश पैटर्न्स जो है उसको आप अवॉइड कर सकते हो ट्रेड कर रहे हैं। यू जस्ट हैव टू लुक फॉर बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स ओनली। आप सिर्फ हैमर पे ट्रेड कीजिएगा, आप सिर्फ बुलिश एनगल्फिंग पे ट्रेड कीजिएगा, आप सिर्फ बुलिश मारूबोजी पे ट्रेड कीजिएगा। आप इन सब चीजों पे ट्रेड कर सकते हो, आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो टोटली। बट यहाँ ये आपको कहाँ पर काम आएगी, लेट्स से आपकी कोई इन्वेस्टमेंट है या आपके पास कोई स्टॉक है और आपको ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर कोई शूटिंग स्टार बन रहा है और उसका कॉन्फर्मेशन भी आ रहा है। आप ऐसे कर सकते हो कि आप पार्शियली बुक कर सकते हो उसको, और आप नीचे में जैसे वो नीचे आएगा आप और ऐड करके आप उसको मतलब और उसमें मतलब आप इन्वेस्ट कर सकते हो। नियरेस्ट कोई सपोर्ट्स के आसपास आती है तब आप यहाँ पर और डाल सकते हो, ऐड कर सकते हो आपके पोर्टफोलियो में। एक तो आप वो कर सकते हो, या तो फिर आप पीएसपी बेच सकते हो आपको आपके पोर्टफोलियो के अगेंस्ट। लेट्स से अगर आपने देखा है निफ्टी में शूटिंग स्टार ऑन अ वीकली में दिख रहा है आपको, निफ्टी में शूटिंग स्टार विद अ कॉन्फर्मेशन, आप सिंपली क्या कर सकते हो, आप सीएसपी कर सकते हो आपके पोर्टफोलियो के लिए, राइट। या तो फिर आप पुट बाय कर सकते हो आपके पोर्टफोलियो के लिए। अब अगर आपको ये सब जानना है कि सीएसपी क्या है, कैश सिक्योर पुट्स क्या है, तो प्लीज डू कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन। आदित्य is a champion in all these things, and he will definitely explain you what CSP is all about, और he will explain you in detail कि कैसे उसको करते हैं और उसको कैसे मैनेज भी करते हैं। तो प्लीज राइट डाउन ऑन द कमेंट सेक्शन अगर आपको सीएसपी और ये सब जानना है। तो लाइफ को बहुत सिंपल रखना है। मान लीजिएगा आपको 2 या 4 ही पैटर्न में ट्रेड करना है, बिकॉज यू आर स्टिल लर्निंग। सिर्फ एक चीज याद रखेगा, जब भी आपने पहले बार 4 व्हीलर सीखा तब आपको क्या लगा था कि मतलब आपको सारा कुछ एक दिन में तो नहीं आया था, राइट। पहले तो कितना टाइम तो आप नीचे ही देखते थे, बराबर, कि जब भी ब्रेक जब भी आपको गियर शिफ्ट करना होता था आप हमेशा ही नीचे देखते थे, राइट। उसके बाद क्या हो गया, आपका कभी ध्यान होता नहीं था रेयर व्यू मिरर पे या मिडल मिरर पे या स्टेयरिंग पे, या आपको समझ में नहीं आता था कैसे फटाक से क्लच से ब्रेक पे आना है, राइट। ये सारी चीजों को एक एक आने में और उसके साथ सिंक होने में टाइम लगा, राइट। तो पहले आपने सिर्फ फोकस किया होगा सिर्फ क्लच और ब्रेक पे, उसके बाद आपने थोड़ा थोड़ा दिनों के बाद आपने फोकस किया मिरर पे भी देखने। तो बेसिकली ऐसा ही होता है ट्रेडिंग भी। आपको सारा कुछ अगर एक ही दिन में सीखना है वो तो कभी पॉसिबल नहीं है। तो आपको पहले एक एक चीजों को क्लियर करना है। पहले सिर्फ कैंडलस्टिक पे आप ट्रेड करना शुरू करो, और ये सारे कैंडलस्टिक पैटर्न जो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है इसके रिस्क रिवॉर्ड सबसे बेस्ट होती है। तो आप इसमें ट्रेड कर सकते हो, पहले कैश में आप ट्रेड करो पहले। तो क्या आपका रिस्क जो है वो आपका पहले ही डिफाइंड होता है। ऐसा नहीं कि फ्यूचर के लॉट की वजह से भले आपके रिस्क अलाउ नहीं करता, बट जस्ट बिकॉज फ्यूचर्स में क्या होता है प्री डिटरमाइंड लॉट साइज होते हैं, तो उसके वजह से आपका रिस्क बड़ा होगा, बट आप एक्चुअली अफोर्ड नहीं कर पाते उस उतने बड़े रिस्क को। तो फिर अवॉइड डूइंग ऑल दोस थिंग्स, जस्ट स्टिक टू कैश। तो चलिए हम और थोड़े एग्जांपल्स देखते हैं। तो चलिए लेट्स क्विकली सी एचडीएफसी बैंक में क्या हुआ। प्राइसेस शार्पली अप मूव हुई और उसके बाद बायस ने इस पर्टिकुलर दिन, ये पर्टिकुलर दिन में 3 जुलाई को बायस ने 1712 से स्टार्ट किया था प्राइसेस, और दे टुक द प्राइसेस ऑल द वे अप टिल 1760 के आसपास। उसके बाद सेलर्स आए और बहुत ही और भी ज्यादा एफर्ट के साथ उन्होंने प्राइसेस को नीचे पुश कर दिया। इतना पुश कर दिया कि इसकी क्लोजिंग लगभग ओपनिंग के पास आई। तो इसकी जो ओपनिंग, ये पर्टिकुलर कैंडल की अगर आप ओपनिंग देखोगे कि 1712 है और इसकी क्लोजिंग देखोगे तो 1719 है, विच मीन्स ये जो बायर्स और मतलब बायर्स ने जितना भी मोमेंटम से ऊपर लेके गए वो पूरा का पूरा जो अपमूव सेलर्स ने रिजेक्ट किया था। तो दिस पर्टिकुलर विक on the upside, it clearly indicates as a rejection from the sellers. The prices on the way up was rejected by the sellers. तो sellers ने क्या किया, सारे लेवल पे सप्लाई देना शुरू किया। 1760, 1755, 1754, 1750, 1730 सारे लेवल्स पे उन्होंने सेल कर दिया। इतने जोर से सेल किया कि बायर्स को उन्होंने टिकने ही नहीं दिया। तो इस पर्टिकुलर रीजन से यहाँ पर हमेशा आप याद रखिएगा शूटिंग स्टार में
ये कलर मैटर नहीं करता है, क्योंकि क्या होता है जो अपर विक है ये सेलर्स का डोमिनेंस शो करता है। तो अब आप सोचिए ना, अगर 1700 से अगर कोई बायर, सारे बायर्स 1700 से पुश कर रहे स्टॉक को 1760 तक लेकर चलते हैं, और सेलर्स हर लेवल पे बेच बेच के 1710 या 1690 पे क्लोज करते हैं, तो उनको क्या फर्क पड़ता है 10 पॉइंट्स ऊपर या नीचे, राइट। बट वो 1760 से जो 1710 पे आया है, वो सेलर्स का स्ट्रेंथ दर्शाता है कि उन्होंने 50 पॉइंट्स जो बायर्स ने पूरा का पूरा ऊपर लेकर गए थे, उसका पूरा का पूरा उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। और वो भी कब, जब स्टॉक रोज रोज अप मूव कर रहा है, रोज नए, मतलब प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक करके नए नए हाईज बना रहा है, मतलब प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक करके एक और हाई बना रहा है, उसके हाई को ब्रेक करके एक और हाई बना रहा है, ऐसे करते करते फाइनली यहाँ पर सेलर्स बोलते कि नहीं अब बस। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो, ये शूटिंग स्टार बिल्कुल भी प्रीवियस रेजिस्टेंस के पास में फॉर्म हुई थी, एंड अगेन दैट इज वन ऑफ अ वेरी गुड पैटर्न। सो इन सच केसेस यू डोंट इवन हैव टू वेट फॉर कॉन्फर्मेशंस, बट अगेन आई एम सेइंग दिस इज ओनली फॉर दोस ऑफ यू हु हैव एक्सपर्टीज, नॉट फॉर एनीवन एल्स। और वन थिंग इज वेरी क्लियर, आपको कोई भी ट्रेड मेरे कहने पे नहीं लेना है। यहाँ पर मैं जो शेयर कर रही हूँ ये तो खाली सेटअप्स है कि ये पैटर्न ऐसा वर्क करता है। आपको फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट करना क्या है, इसके बाद आपको जाके खुद हिस्टोरिकली जाके बैक टेस्ट करना है। जो भी टाइम फ्रेम आप ट्रेड करने वाले हो, या जो भी टाइम फ्रेम पे आपको बैक टेस्ट करना है, या आपको अगर ऐसा लग रहा है कि निकिता ने सिर्फ डेली में बताया, इसका मतलब डेली में चलता होगा बट 15 मिनट में शायद नहीं चलता होगा, तो जाके बैक टेस्ट कीजिएगा सारा, मेरे कहने पे मत लीजिएगा। तो दैट्स हाउ यू विल डेफिनेटली इम्प्रोवाइज, बिकॉज उससे क्या होता है, आपके आईज भी जो है वो ट्रेंड हो जाती है, तो आपको इमीडिएटली जाके दिखेगा कि हाँ ये पैटर्न ये है करके। So to train your eyes, you have to actually go and check the charts. You have to spend good amount of time with the charts in different time frames across different scripts. Go and backtest that. And once you are convinced with that kind of a backtest, और देखिएगा बैकटेस्ट ऐसा नहीं कि सिर्फ ये हाँ यहाँ पर हाँ शूटिंग स्टार बन गया, ऐसे नहीं चलेगा। यू हैव टू गो एंड बैकटेस्ट कि आपने एंट्री और ऐसे लिया होता तो कितना आपको आरआर मिला है, तो उसके बेसिस पे फिर आप आपका ट्रेड्स इनिशिएट कर सकते हो विद अ वेरी स्मॉल कैपिटल। तो जब भी हम टेस्ट जो करते हैं वो कभी पूरे फुल कैपिटल से नहीं करते, उसका एक पार्ट, छोटे पार्ट से हम करते हैं, या तो फिर आपका जो कैपिटल है उसका 0.5% का रिस्क लेकर आप टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ऐसा बैक टेस्ट करना चाहिए फिर। तो कमिंग बैक टू द थिंग, 5 जुलाई को आपको यहाँ पर आप इनिशिएट करोगे शॉर्ट पोजीशन। आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, ये शूटिंग स्टार का कैंडल का हाई। आप अगर यहाँ पर देखोगे तो आप ये 5th कैंडल के लो के दिन आप इनिशिएट करोगे आपका शॉर्ट्स, और आपका एसएल क्या होगा, ये शूटिंग स्टार का हाई। और आपका अगर आप टारगेट देखोगे, अगर आप पहले सपोर्ट के पास में भी कहीं तो बुक किया होता तो आपका 1:1 है, और अगर आपने पूरा टारगेट के लिए अगर आप ट्रेल करते करते चले हो तो आपको मोटा मोटी आपको यहाँ पर 1:2 का तो टारगेट्स मिल ही गए होंगे। अब ये तो हो गई एचडीएफसी बैंक की बात। अब चलिए हम देखते हैं क्विकली 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी बैंक निफ्टी में, जो कि हाल ही में बना है। तो यू गाइस विल अप्रिशिएट दैट इवन मच मोर, बिकॉज जो लोग हमारे इस चैनल से डे 1 से जुड़े और जो लोगों ने सारे वीडियोस अब तक देखे होंगे, तो यू गाइस कैन रिलेट मच मोर विद दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल। तो चलिए देखते हैं 15 मिनट में। अब यहाँ पर तो बहुत सारी सपोर्ट रेजिस्टेंस है, आई विल जस्ट हाइड दिस। तो अपन अपने एनालिसिस पे चलते हैं। तो जैसे कि आपको याद है, ये पहले एक सपोर्ट हुआ करता था जो ब्रेक होने पे एक रेजिस्टेंस हुआ, राइट, ये अगर आपको याद है तो उसी को हम थोड़ा थोड़ा आगे चलते हैं कि देखते हैं क्या हुआ है। तो अगर आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो सपोर्ट था ये बाद में रेजिस्टेंस हो गया। ये रेजिस्टेंस के बाद प्राइसेस जैसे ही नीचे आए, प्राइसेस वापस ऊपर गए, और ये रेजिस्टेंस के पास आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर एक शूटिंग स्टार फॉर्मेशन हुआ है और उसका कॉन्फर्मेशन भी आपको मिला है। आप यहाँ पर इनिशिएट कर सकते हो वापस से शॉर्ट्स विद हाई ऑफ दिस पर्टिकुलर शूटिंग स्टार एज योर एसएल, और आपको यहाँ पर आप खुद देख सकते हो कि आपको कितना इसका आरआर मिला होगा, राइट। देखिएगा आप यहाँ पर ये वाली एंट्री है अपनी, ये रेड कैंडल की क्लोजिंग पे, ये रेड कैंडल की क्लोजिंग पे अपनी एंट्री है, और इसके आसपास हमारी एसएल है। और अगर आप देखते हो तो आपको कितना मिला है यहाँ पर आरआर, 4.8 रफली 5 के आसपास। 1:2 तो डेफिनेटली मिली है। ये तो अगले ही दिन आपकी गैप डाउन से ओपन हुई है, राइट। तो ये है आपकी शूटिंग स्टार जैसे 15 मिनट में भी कैसे वर्क कर सकती है, ये मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल पे दिखा रही हूँ। पहले तो अभी याद रखिएगा, ये शूटिंग स्टार जो भी पैटर्न है, दिस सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, दिस हैज गॉट एन एक्यूरेसी ऑफ 75 to 80%, which means 20 to 25% of the times you are still going to lose money. To ensure that you are following proper position sizing, it can't be like just because you watch this particular video and now you're totally motivated to find shooting star or maybe find hammer and then start trading on it. That is
a very good thing to do, but you have to do your homework first, which is backtesting the entire thing. The second thing is you can't put all your money on one particular candlestick pattern without testing it out on a smaller capital. तो पहले वो सब चीजें कीजिएगा, आप टेस्ट कीजिएगा, छोटे कैपिटल ट्रेड कीजिएगा, फिर आप आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से, फिर जैसे मतलब आप आपकी जर्नल को देखोगे कि हाँ ये पैटर्न ने आपको इतना बना के दिया है, तब आप उसमें रिस्क इंक्रीज कर सकते हो. तो हमेशा याद रखिएगा देयर इज अ सिस्टमैटिक वे टू प्रोग्रेस इन लाइफ. तो वो जो एक पाथ है वो आपको फॉलो करना है. यहाँ पर अगर आप ये ऐसा सोच के आए हो कि मेरे पास 10 का मैं 100 करने वाला हूँ ओवरनाइट, there is nothing called as overnight success to tell you frankly, there is nothing called as overnight success. It usually happens that you slog for a period of time, for a longer period of time, and one fine day you get a big paycheck, and that amount is actually for all the slogging that you have done for so many years. So there is nothing called as overnight success. So you have already put in the hard work in the previous years for a period of time. Let's just quickly wind up. Conclude करते हैं हम कि शूटिंग स्टार क्या है. तो पहले तो हम देखते हैं शूटिंग स्टार में क्या है. बॉडी बहुत छोटी होती है और जो पूरा कैंडल का रेंज है उसके नीचे के 25% के यहाँ पर होता है, विच मीन्स द प्राइस क्लोजेस एट द बॉटम 25% ऑफ द रेंज. जो अपर वीक है वो इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस शोज द प्रेजेंस ऑफ द सेलर्स. वो होती है मिनिमम 2x ऑफ द एंटायर बॉडी. तो मिनिमम क्राइटेरिया है हमारे पास कि ये 2x होनी चाहिए. नीचे की शैडो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए बिकॉज नीचे की शैडो अगर आ जाती है तो फिर वो शूटिंग स्टार नहीं कुछ और बन जाती है. और यहाँ पर ये जो बॉडी है हमेशा बहुत ही छोटी रहती है. इट इज अ वेरी स्मॉल बॉडी. हाउ टू टेक ट्रेड्स, we just saw so many examples. You can just go back and check how to take trades. Now remember the most important thing is this particular pattern is color agnostic just like hammer. अगर ये बॉडी रेड होती है या ग्रीन होती है doesn't matter, we have to still consider it as a shooting star. But इसका मतलब ये है कि shooting star दिखते ही हम short करेंगे. The answer is no. We will wait for a confirmation candle. Shooting star serves as an alert candle for us. We will wait for a confirmation candle. However, remember it has to form at the top, which means prior uptrend should be there in place. And if you find that particular shooting star near to a resistance and everything, then even better. Like it just gives you one more confirmation. Just before winding up, I will just take one more example. तो मैं एक और छोटी सी एग्जांपल हम कोई FNO स्टॉक पे चलते हैं बिकॉज शॉर्टिंग वाली सीन है. तो इसके लिए हम लोग वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन FNO stocks. So let's go to Adani Enterprises and let's quickly check what has happened in this case. So in daily, this is a daily chart of Adani Enterprise. On the daily charts, around 24 June 2022, the prices, the stock was trading around 2200 and it made an up move till 3868 within 3 months. It's roughly 87 to 90% up move. Now, what has happened after the sharp up move? Can you guys spot this particular shooting star pattern? तो प्रायर अप ट्रेंड और उसके बाद आपको शूटिंग स्टार मिल रहा है एंड देन देयर इज अ कॉन्फर्मेशन एज वेल. लेट्स इनिशिएट अ शॉर्ट ट्रेड. ये कॉन्फर्मेशन कैंडल के बाद तो आपको यहाँ पर कहा कितना मिल रहा है 1:2 RR यहाँ पर भी मिल रहा है. तो जस्ट टू कंक्लूड अगेन आई एम जस्ट शोइंग कि कैसे आप ट्रेड ले सकते हो. हाउ यू वेयर इज द एंट्री, दिस इज द एंट्री एंड दिस इज योर SL एंड दिस इज हाउ यूजुअली द पैटर्न गिव्स यू 1:2 काइंड ऑफ अ रिस्क रिवॉर्ड. तो आई होप यू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो. अगर आपने इस पर्टिकुलर वीडियो से कुछ नया सीखा होगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और आप ये वीडियो और भी लोगों के साथ शेयर कर सकते हो अगर आपको लगता है ये वीडियो यूजफुल है. आई एम निकिता पुजारी एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. आई सी यू in the next video. Until then, take care. Bye.